हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पे एक बहुत ही स्टनिंग सा जोड़ा है और दो बहुत ही स्टनिंग सेट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली दो सेट्स आप पहन नहीं सकती। अच्छा, तो मेरा ख्याल है पहले जोड़े पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। माहीन, ये तो आपने बता दिया कि आपने इनको गोल्ड क्यों नहीं दिया बारात पे और रेड क्यों दिया। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल आप बताएं हमें कि ये क्या है और इनके लिए स्पेसिफिकली आपने ये क्यों डिजाइन किया। गोल्ड हमने इसलिए नहीं दिया, लाइक वी सेड अर्लियर, और रेड, ये रेड भी खास तौर पे ये वाला रेड इसलिए दिया बिकॉज आप बहुत फेयर हो फातिमा, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप मरून पहनो, बिकॉज मरून का ये है, हाँ, मरून की जो लाइट जो आती है वो इट्स ऑलवेज मोर टुवर्ड्स द ग्रे एंड द ब्लैक टोन, which I think you're too fair for. Also, I would never give you a kacha red because wo aap, again, you're very fair. So since it's a great thing, but you know you have to be very careful. Especially I've noticed fair लोगों के साथ बहुत ज़्यादा careful होना पड़ता है. You know, आज जो almond sort of skin tone is easier to handle that way. इसलिए जो red मैंने आपके लिए किया है वो एक ऐसा red है जिसमें pink का काफ़ी generous touch है, which reflects a pink light, which is a softer red. It has more depth in it. It's not a very stark red. तो ये आपको सूट करेगा। यानी कि फेयर लोगों के लिए ये टिप है कि अगर वो थोड़ा सा पिंक रेड यूज करेंगे बारात पे कलर, तो उनकी कंप्लेक्शन और फेयर लोग जो है ना उनको ये दिमाग में रखना है that they need to stay away from maroons because that will totally sort of overpower them, wear them down, bring out the grey tone in their skin, and secondly stay away from like a Ferrari red because that, you know, you don't want people having to put on glasses to see. वो प्लीज पिंक वाले रेड्स यूज करें। और माहीन, ये काम की डिटेलिंग क्या? काम की भी और सिलुएट की भी मैं बताती हूँ। अगेन, जैसे मैंने कहा था, आपका फ्रेम बहुत petite है and you're not exceptionally very tall, so what I decided to do for you was give you an empire line. When you are petite and you have that shape around the waist, I think ये बहुत अच्छी तरह emphasize करता है and then give you the flare. As you know, the long length is still lingering and the flare is still lingering, which is very funny because this season a lot of designers, myself and my friends, whoever I've been talking to, we all wanted to go back. हम आपस में भी जब discuss करते हैं तो everyone design-wise wants to take things back to short, but the clients are fighting it tooth and nail. Women want the flare, they want the length, they're not ready to give it up this season. इसकी वजह है ना कि जो physiques हैं हम सबको छुप जाता है, सबको छुप जाता है. Suits everyone, suits the tall, suits the short, suits perfect body type, suits people. It's very flattering. You know, very flattering. And I think as women also. So you know, we all have this drama queen inside us. We all love swishing around in the flare and everything. और ब्राइड पे इतना स्विशिंग हो तो और क्या फिर। हाँ। But keeping in mind, still keeping that in mind कि आपको सिलुएट फिर भी देनी थी जो एक trendy सिलुएट हो जो आजकल इन भी हो, but keeping your physique in mind, I've given you a very tapered flare. अगर आप देखो empire line है जिससे आपकी petite physique emphasize होगी, and the flare is very controlled till about the small head. और फिर flare जाता है। और माहीन, आगे से शॉर्ट है और पीछे से लॉन्ग है, ट्रेल है। और एक तो वो है बिकॉज ऑफ हर हाइट ऑल्सो ना, अगर मैं इसको बहुत सारे वॉल्यूम में डाल दूंगी, फॉर इंस्टेंस जो तुमने पहना हुआ है, अगर मैं इसको इसमें डालूंगी she'll drown in it. You know, you don't want that. You want the, like I said, you want the outfit to complement her, not really be all about her and दुल्हन बीच में कहाँ छुप गई। इसलिए वॉल्यूम भी है, फ्लेयर भी है, लेंथ भी है, बट ऑल curtailed to your requirements and for your ideal silhouette. अगेन, आपकी हाइट पे, आपकी फिजिक पे कभी भी मैं आपको गरारा नहीं रेकमेंड करूँगी, लाइक वी सेड अर्लियर। गरारे का ये है शरारा है, इट्स अ टू लेगेड 12 पैनल वाला शरारा जिसके अंदर यू गेट द फुल फ्लेयर, मगर आपकी लाइन नहीं ब्रेक होती बिकॉज इट्स अ वन लाइन थिंग। गरारे में जहाँ भी कट आ जाता है वहाँ यू ब्रेक द विजन, यू नो, एंड ऑन योर हाइट आई वुड नॉट रेकमेंड। भाई, ये बहुत ज़रूरी टिप्स हैं और आप लोग सब गौर से सुने इसको, क्योंकि जो पिटीट लड़कियां हैं उनके लिए माहीन कारदार इस वक्त बहुत ही ज़रूरी बातें कर रही हैं। मुझे ये लगता है कि जितने, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट, चाहे वो डिजाइनर है, आई थिंक इट्स लाइक आई एम फीलिंग लाइक सेम, जो इंटेलिजेंट और जिसको काम का पता है ना। देखिए, जब आपकी शादी हो रही होती है ना, तो जो की लोग हैं, जैसे यहाँ पर सारे हैं, वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। यू नो, अगर मैं जोड़ा बनाऊंगी, मैं आपको जरूर कहूँगी मैंने ज्वेलरी देखी, यू नो, ये हो, मैं आपको बड़ी एक एथनिक चीज बना दूं, आपका सेट बड़ा मॉडर्न हो, इट्स नॉट गोइंग टू गो टुगेदर। एंड ही विल से टू यू, मैंने जोड़ा देखना है और मैंने ज्वेलरी देखनी है कि मैं बाल कैसे करने हैं, सब कुछ कैसे करना है, सो आई नीड टू सी दैट। शजरे विल से टू यू, मैंने जोड़ा देखना है क्योंकि अकॉर्डिंगली आई विल सेट। सो दिस टीम हैज टू वर्क वेरी वेल टुगेदर।
और वो हर क्लाइंट का जो है ना, व्हेन यू आर, आई नो देयर सो मेनी थिंग्स जो आपके साथ हो रही होती है व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, बट वन मेन थिंग इज हाउ टू चूज द राइट पीपल who all work well together, who all work well for you. डिजाइन करनी होती है तो मुझे आपको देखना होता है ऑब्वियसली पहले, और उसके बाद मैं आपको पूछती हूँ कि आप कौन से कलर्स में जाना चाहती हैं। अच्छा रूबी, यहाँ पे जो आपने इनके लिए रूबीज और डायमंड्स का सेट रखा हुआ है और एक आपने रखा हुआ है आई थिंक पर्ल है इसमें और डायमंड्स हैं जी, तो कौन सा आप ज्यादा इसके साथ रेकमेंड कर रही हैं? और इनके लिए ले तो आप दो ऑप्शंस आई हैं स्पेशली डिजाइन करके, भाई यू आर अ वेरी लकी ब्राइड क्योंकि दो आपके लिए डिजाइन हो गए। अब ये महीन के ऊपर है कि दोनों फैंटास्टिक चीज़ें हमने की हैं। ये कड़ा देखिए आप, महीन के लिए सॉरी फातिमा के लिए हमने डिज़ाइन की है। सी ये जोड़े के साथ भी जाता है और इसकी जोड़े के ऊपर जो काम है उसके साथ उसकी शेडिंग रेड की जो एक्सेंट्स है वो उस पे बड़ा। और महीन आई थिंक जो थोड़ा सा सिल्वर टच निकल रहा है वो अगर मेकअप और जोड़े और सेट में ऐसे बैलेंस आउट हो जाएगा कि बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं होगा। ये देखिए कि आप झूमर तो बहुत स्टाइलिश एंड ट्रेडिशन दोनों की तरफ आपकी मैं देख रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स हैं। तो ये देखिए कि झूमर जो है ये ना तो बहुत ह्यूज चौड़ा और उस तरह है भद्दा, दिस इज वेरी स्टाइलिश। तो आपको लगता है इसमें रेड का शेड होना चाहिए विद इन माय ज्वेलरी या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आप ज्वेलरी की शेडिंग देख रहे हैं कि इस तरह का आपको दिखाइए। यू नो आई आप अपना हाथ छोड़ दीजिए, गिर जाएगा जरा। हाँ नहीं वो शजरे पकड़ती माशाल्लाह एकदम से इनका जो कम्प्लेक्शन है वही ग्लोइंग हो गया है। हाउ नाइस। और एनी मेरा ख्याल है कि इनको जल्दी से लेके चलते हैं मेकअप स्टेशन की तरफ। वो बहुत बेचैन हो रही है, आई कैन सेंस योर एक्साइटमेंट कि आप फाइनली इसको पहने ज्वेलरी को, मेकअप हो और आप फाइनली लुक में आए। यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फ्रेंड्स के कमेंट्स सुन के वापस आएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक। फातिमा मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, शी इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी फन लविंग और वो ज़्यादातर बहुत सादा रहती है, बिल्कुल मेकअप नहीं करती। Fatma, lot to say about Fatma because from the childhood I know her very well. छोटे से अब तक इकट्ठे बड़े हुए हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। शी इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी क्यूट एंड वेरी प्रीटी, वेरी स्वीट। फातिमा के साथ इतना हमने एंजॉय किया हुआ है। फातिमा मतलब वो तो टॉम बॉय है फातिमा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत फ्रेंडली है, इजीली हर एक के साथ मिक्स हो जाती है। वो वैसे तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक सिंपल सी लड़की है, लेकिन हमेशा वो ड्रेसिंग वाइज, हमेशा वो क्वालिटी वाइज उसकी ड्रेसिंग होती है। आई एम जस्ट एक्साइटेड कि मैं उसे ब्राइडल लुक में देखूं बिकॉज ज़्यादातर वो कैजुअल फॉर्म में रहती है और इतना नॉर्मली जो है वो बहुत सिंपल रहती है, इतना मेकअप वगैरह नहीं करती है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उसको देखने के लिए कि अब वो ब्राइड बन के कैसी लगेगी। लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो ब्राइड बन के कैसी लगेगी। बिकॉज अभी तक उसको दूसरों की शादियों पे तैयार होते हुए देखा है, नॉर्मली वो बहुत सिंपल रहती है, इतना कोई तैयार नहीं होती है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। शी डोंट लाइक टू गेट मेक ओवर एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन आई थिंक शी विल लुक ग्रेट इन अ ब्राइडल लुक।